All right. So in set off and carry forward of chapter, what we have learned is this. First, we do inter-head set off. First, we do inter-source set off within the head. There are certain exceptions to that section 70. Then in section 71, we have learned that we can also do inter-head set off, but only in the year of loss, not in subsequent year. And then we have learned this carry forward table where you should remember one thing is for sure, HP loss can be set off against HP. Business loss can be set off only against business. Okay. Speculative loss can be set off only against speculative income. Specified loss can be set off only against specified income. Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. Short-term capital loss can be set off against short-term capital gain or long-term capital gain. ONM loss can be set off only against ONM income. Okay. And look at the carry forward respective table. Then I ask you, will you set off current year losses first or will you set off brought forward losses? So first, always remember current year losses. Out of brought forward, there can be either unabsorbed depreciation, or brought forward loss. You tell me which one of these are having limited life. Brought forward business loss is having limited life or unabsorbed depreciation is having limited life. Which one is having Brought forward is having limited life. Therefore, it should set off before setting off unabsorbed depreciation. So this is the limited period and this is unlimited period. And therefore, from brought forward, first we set off losses and then we set off unabsorbed items of PGBP head. That includes unabsorbed depreciation, unabsorbed scientific research and unabsorbed family planning. So this is how it is there. Now I'm going to teach you the same thing again, but in my words. That was the legal language. This is my words. An interpretation of section 70 and 71. Okay. Later on, you can also include if you want carry forward data also, but I wanted to focus on section 70 and section 71. So out of all 5 heads, IFS is the only head which can never have losses. Not possible at all. IFS is the only head which can never have losses. Is it clear? Point number 1 clear. IFS is the only head which can never have losses. Yes. Hello? Yes. I'm teaching you each head ka loss ka treatment. Okay. All 5 head. I'm teaching you each head ka. Now head wise loss. If you have loss in particular head, what can be done about it? Okay. So there is a loss in house property head now. Okay. That loss can go against section 70. Section 70 means inter source in the same head. Okay. So one house property loss can be set up against another house property and there is no limit about it. There is no limit. Okay. You can set off in crores, no limit at all. But whenever a house property loss goes inter-head means other heads. So it can travel to any head. Any head means salary head, PGBP head, capital gain, IFOS, but not casual income. That you already know. You cannot set off anything against lottery winning and card game and this betting. Okay, so that has to be taxed at the rate of 30%. So normal IFOS I'm talking about. Okay, normal IFOS I'm talking about. Here this is minus IFOS minus casual income. Okay, so but here maximum you can set off is how much? Hello, maximum you can set off is how much? 2 lakh. 2 lakh. Very good. Okay. Next, the third point is PGBP losses. Am I clear with the loss treatment of house property head? Head wise we will go. Are you clear with house property head treatment? Yes, sir. Yeah, you can write down carry forward period also here. How many years you can carry forward it? If you are unable to set up against under section 70 and 71, then you can carry forward for 8 years. And once it is carried forward, it can set up only in house property. Next, PGBP head loss. PGBP head, this you already know. Speculative loss can be set up only against Bulo. Speculative income. ये बोलते रहने का, because these are the notes that we are going to write in future question, and it can be carried forward for how many years? 4 years.
O&M loss can be set off only against O&M income. आवाज नहीं आ रहा है. O and M loss. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाटक करता है. O&M loss can be set off. अभी देखो, O&M loss can be set off only against O&M income and it can be carried forward for maximum 4 years. I am getting 4G network here, Vodafone 4G, that too. Proper network. There should not be any disturbance from my side. Are you guys able to hear me? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Sometimes it is on student side. One particular student may be issue with his own data. So check that. Specified business loss can be set off against any specified business. Do you remember this any? I have told you many things about this any, and we solved one question also. 4-star hotel ka loss was able to, 3-star hotel ka loss was able to set off against 4-star hotel. So ye clear hai? And here you can carry forward this particular loss to the infinity. Am I clear with first 3 points? Hello? Are you guys able to understand first 3 points of PGBP head? Yes, sir. Now, Yes, sir. now the normal business loss. This is the normal business loss. Normal business loss. Normal business loss can go under section 70. 70 means within the head. Within the head, normal business loss can be set off against normal business income. It can also set off against speculative business income. It can also set off against specified business income because ये loss normal है. Okay, these are special losses. Therefore, special treatment. Normal loss का कोई special treatment नहीं है. Normal loss can be set off against normal business income, speculative business income, specified business income, or any other head also, but not salary. Not salary. Not salary. It cannot go under salary. Again, here I do ask one question. How many, okay, not against salary head, but how much rupees loss maximum can be set off from business head to house property head? Hello, tell me. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है, कैन आई सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी? I got 10 lakh rupees business loss. Can I set off against house property? Tell me. Yes. Yes. पूरा? Yes. Complete? 8 lakh. 2 lakh. देखा, ताई ने बोला ना 2 लाख, कोई ना कोई बोल ही देता है 2 लाख. हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबीपी में आने का लिमिट है 2 लाख. हाउस प्रॉपर्टी का एनी अदर हेड में जाने का लिमिट है 2 लाख. पीजीबीपी हेड में कोई लिमिट नहीं है. हेलो ताई, हाँ हाँ पता चला. उल्टा नहीं है, ठीक है ना? वाइस वर्सा लॉ नहीं लगाने का कभी. ओके. Capital gain head loss. Long term can set off only against long term. Short term can only set off against short term or long term. That means it cannot set off against any other head. इसका चार्जर निकाल के वो लगाओ. इधर तो इसने चार्ज लग, पता नहीं है ये वाला जो है, या वो वाला पिन अभी नीचे कोई नहीं है ना? वो वाला निकाल. और इसका भी मुझे चार्जर है. योगा का चार्जर किधर, तो इधर होगा. देखो कैसे इसने सब सेट किया. यूज कर लो, नहीं यूज कर रहे अपना वाईफाई मुझे क्यों दिया थे? Is it clear? Point number 5. Yes. Point number 6.
IFOS का loss can be set off against IFOS income, okay, but not casual loss. Casual loss can never be set off against anything, and IFOS loss can set off against IFS, HP, capital gain, PGBP. It can set off against anything, but there is no carry forward. IFOS loss cannot be carry forward. No carry forward. We don't have any carry forward provision for IFOS loss. First of all, it is very difficult to generate IFOS loss. I hope you can guess that. It is very difficult to generate IFOS loss. How can you generate IFOS loss? 12% पे 12% पे आपने लोन लिया है और 8% पे इन्वेस्ट किया है, then only you can have IFOS loss. Difficult but not impossible. Some mad people can do that. So these are the notes that I wanted to teach you guys. Okay. Allow me to take few illustrations from our module, so that you will understand these concepts ka application. Now I'm going to ask question and everyone should reply either in chat or unmute yourself and reply. Okay. Very important discussion. Illustration 1. Mr. A, age 35 years, submits the following particulars for AY 2021. Okay. Income from salary, positive. His salary is positive. Very good. Very good. Loss from self-occupied property and loss from let-out property. तो पहले इन दो लॉस के ऊपर बात करते हैं. दोनों लॉस है. And house property head में कोई income नहीं है. In this question there is no income under house property head. That means section 70 is not possible. That means section 71 should happen. So my question to you is, can I set off? Look at my question and you need to answer me very correctly, okay? Otherwise I'll say some nonsense thing to you. And your family members will also listen. So, loss from self-occupied property and loss from let-out property. Can I set off these two losses against salary head? Can I set off house property losses against salary head? Yes. Yes. पूरा यहाँ पे जितना लिखा है. Up to 2 Restricted 2 lakh. 2 lakh. जरूरी है ना. That is important. This loss is 2,20,000. Maximum which can set off here is 2 lakh. Maximum which can set off there is 2 lakh. Are you able to get this? Yes, sir. Yes, sir. Now there is a business loss of 1 lakh rupees. Can I set off? Now अभी salary head में बचा कितना? How much is left? 2 lakh का set off हो गया. तो how much is left? 2 lakh. 2 lakhs. 2 lakh. There is a business loss of 1 lakh. Can I set off business loss against salary? एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का मेंटालिटी सेम होगा क्या? No. Oh. No. नहीं, ये सेट ऑफ पॉसिबल No. नहीं है. सेक्शन 71 में क्लियरली लिखा है, पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी हेड. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. एम आई क्लियर? Yes. बट कैन आई सेट ऑफ अगेंस्ट IFOS? Can I set off business loss of 1 lakh rupees against IFOS? No. अभी भी मैं तुमको सुनो, नालायक लोगों, बेशर्म लोगों, अभी भी मैं तुमको क्वेश्चन पूछता है ना, तो तुम्हारे सामने मैं पाशा सुन, मैं तुम लोगों को इसलिए लिखो बोल रहा था because you people should have this table in front of you. ठीक है ना? मैंने अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछा, क्या बिजनेस का लॉस IFOS के सामने सेट ऑफ होता है? क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस IFOS के सामने सेट ऑफ होता है? यस और नो? Yes. होता है. Yes. Therefore, this table is very important. These charts are very important. It takes time to understand this. So yes, definitely this loss is possible. Obviously up to 80,000 because income is only 80,000. Yes or no? Yes. तो बताओ लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या क्या कर रहे हो तुम लोग करंट ईयर में? व्हाट आर योर कैरी फॉरवर्डिंग? पहला क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे आज? Business loss. पहला लॉस IFHP लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या?
Yes. प्रॉपर्टी लॉस 20,000. कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 20,000. 20,000. और बिजनेस का कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 20,000. सेट ऑफ हो गया. हाँ, मेरा क्वेश्चन बैच के स्मार्ट बच्चों के लिए, मेरा क्वेश्चन बैच के स्मार्ट बच्चों के लिए, मान लो ये बिजनेस लॉस नहीं था, मान लो नहीं है, इमेजिन करो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी कितना सेट ऑफ किया 2 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस बच गया था ना, बैलेंस बच गया था ना 20,000 का लॉस का, बरोबर ना। एचपी का 20,000 का बैलेंस है ना, Yes. तो ये 20,000 क्या मैं इसके 80,000 के सामने सेट ऑफ करूं, पॉसिबल है? Yes. नहीं. नहीं नहीं No. नहीं नहीं तो क्यों नहीं? अरे डिडक्शन मिलता है. अरे बेशरम लोगों, मैक्सिमम 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी की. में। हाँ. मैंने तुमने क्या बोला, हर हेड का 2 लाख है, टोटल हाउस प्रॉपर्टी लॉस which can travel to other head is 2 lakh and it has already traveled to salary head up to 2 lakh. Now you cannot set up against any other head. हाँ. तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. तो बोलो करंट ईयर में टोटल इनकम कितना, टैक्सेबल इनकम कितना, बोलो इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में ये 2 बातें पूछूंगा मैं, व्हाट विल बी माय टोटल इनकम एंड व्हाट इज द कैरी फॉरवर्ड। बोलो टोटल इनकम कितना, करंट ईयर में मुझे कितना टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। $2 lakh. 2 लाख, 2 लाख, ये बच गया ना इधर का 2 लाख, वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल मतलब ऑफर हो जाएगा टू टैक्स। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अंडरस्टूड कैसे करना होता है, गेम क्या चलता है यहाँ पे, समझा तुमको? सर इनकम का बताओ 2 लाख पैसा. ये देख आंसर देख हमारा, सैलरी 4 लाख का है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2,20,000 का है, लेकिन मैक्सिमम कितना सेटअप हो सकता है 2 लाख का, तो बचा हुआ 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए, इसलिए टैक्सेबल सैलरी 2 लाख है, ठीक है ना। 2 लाख. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 80,000 है, बिजनेस लॉस 1 लाख का है, 1 लाख रुपया सेटअप नहीं हो पाएगा, 80,000 के सामने 80,000 चला गया, 20,000 जो बच गया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया 2 लाख और 2 लॉसेस हमने कैरी फॉरवर्ड किए, ये 20 ये 20, इसलिए अपना ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख का डिडक्शन चैप्टर में दिया नहीं है, इसलिए मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम 2 लाख, और इन्होंने नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आ जाएगा, हाँ. आना ही चाहिए, तुम्हारे पास चॉइस थोड़ी ना क्या है, Yes. ठीक है। और एक बार करें, और एक क्वेश्चन करें, Yes. बोलो बोलो, हाँ बोलो ना, आगे चलना है मुझे, हाँ बोलो, हाँ. हाँ बोलो, ठीक है ना, अभी बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे 45,000 का सैलरी में इनकम है एंड हाउस प्रॉपर्टी में 24,000 का लॉस है, ये सेट ऑफ है, पॉसिबल हो सकता है ये सेट ऑफ। हाँ. तो सैलरी में बैलेंस कितना बचा, पॉजिटिव बैलेंस कितना बचा, कैलसी पे रखो तुम्हारे सामने, 21,000. हाँ, वो 21,000 के सामने क्या में ये नॉन स्पेकुलेटिव, ये नॉन स्पेकुलेटिव मतलब नॉर्मल लॉस, ये क्या अजीब सा आवाज आ रहा है किसके माइक में से, माइक बंद करो सब लोग अपना अपना। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये 22,000 क्या सैलरी के सामने सेटअप करूं, जल्दी बोलो। हाँ नहीं. अरे बिजनेस लॉस सैलरी के सामने हमेशा सेटअप नहीं होता, नहीं होता ना, ये पॉसिबल नहीं है, बिजनेस लॉस सैलरी के सामने सेटअप नहीं होता, बात क्लियर है? यस सर। डर मत, बात ऐसे ही कर रहा था, अरे मजाक कर रहा था मैं, पाशा आपको कभी चिल्लाते क्या बॉयज लोगों को, एक्टिंग कर रहा था मैं। सुन, इनकम फ्रॉम Girls लोगों पे बिजनेस,
ये बता, स्पेक्युलेटिव बिजनेस यहाँ पे जाके सेटअप होगा क्या सैलरी के सामने? नो नो ये भी नहीं होगा। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सैलरी के सामने जाके सेटअप हो सकता है? नो शॉर्ट लॉस, नो नो वो भी नहीं, नीचे वाला भी नहीं। हाँ ये नहीं। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल तो गेन है, गेन तो गेन है तो है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो गेन है उसकी बात करता हूँ। अभी सैलरी के सामने मतलब तुम समझ रहे हो ना, सैलरी के सामने इस क्वेश्चन में जो जो सेटअप हो सकता था मैंने किया। क्या सेटअप हो रहा था सैलरी के सामने? एक ही आइटम। इतना करने हाउस के बाद, प्रॉपर्टी का इतना करने के बाद सैलरी कितना आया? कितना टैक्सेबल सैलरी आया? 21,000 21,000 टैक्सेबल सैलरी। मैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, बताओ इन दोनों का सेटअप होगा क्या पहले? नहीं नहीं अरे अरे देवा रे, होगा 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 कैपिटल लॉस होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बाबा बड़ा भाई छोटे भाई के घर में नहीं आता है, छोटा भाई छोटे भाई के घर में भी जाता है, बड़े भाई के घर में भी जाता है। होता है होता होता है कि नहीं होता? ये दोनों सेटअप होते कि नहीं होते? है। ये सालों माइक में से अलग अलग आवाज में निकालो, यस और नो बोलो फिर से एक बार। हाँ और no। हाँ यस होता है, वेरी गुड, होता है। मुझे एक बात बोलो सर, लेकिन ना आपका बिजनेस का लॉस भी तो कैपिटल गेन के सामने सेटअप होता है कि नहीं? बिजनेस लॉस भी कैपिटल गेन के सामने सेटअप होता है कि नहीं? हेलो, बिजनेस लॉस कैपिटल गेन के सामने सेटअप होता है कि नहीं? मुझे पहले वो बोलो। यस होता है। आउटगोइंग इनकम लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? मैंने बिजनेस लॉस क्यों नहीं किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने? मैंने यही क्यों किया दोनों? ये पहले इंट्रा हेड को ही देंगे ना, पांडा, हेड पहले को। लाइफ में इंट्रा हेड, अरे पहले 70 तो करो फिर 71 करोगे। पहले सेक्शन 70 का एडजस्टमेंट करना होता है। अपने घर में जब लॉस है, तुम लोग भी नहीं करते क्या? तुम्हारा खुद का घर तो साफ नहीं करते। पाशा देगा, तू खुद का घर तो कभी साफ नहीं करता होगा, लेकिन गणपति अगर बैठना होगा पूरा मैदान साफ करता होगा तू। मतलब अपना घर छोड़ के गांव साफ करने निकल जाते हो तुम लोग, होता है कि नहीं? बंद किया सर सब अभी। हाँ, बंद करने का पाशा, वही बता रहा हूँ। पहले खुद का घर, तो ये दोनों देख कैसे कर रहे हैं। बाबा हमारे हेड का पहला लॉस हम सेट ऑफ करेंगे, फिर बचता अगर हमारे पास तो हम आपको सेट ऑफ करने देते। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हमारा ही खुद का थोड़ा लॉस बच गया। कितना? 6,000 का। तो बताओ कैरी फॉरवर्ड क्या क्या करने वाले हो तुम करंट ईयर में? जल्दी बोलो, क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे? ये लॉस खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा 22,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, बरोबर? ये 4,000 हाँ। कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ से 6,000 कैरी हाँ। फॉरवर्ड होगा। हाँ हाँ, देखो आंसर देखो कैसे प्रेजेंट किया जाता है। 45,000 इनर कॉलम में लिखा जाता है, उसके सामने वॉट एवर पॉसिबल सेटअप वो हमने माइनस कर लिया, बैलेंस आ गया 21,000। 21,000 में से अभी तो और कुछ सेटअप होने वाला है नहीं, ये भी सेटअप नहीं होगा, ये भी सेटअप नहीं होगा। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने शॉर्ट टर्म सेटअप होगा और बच गया ये। तो 3 लॉस मेरे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ओके। और उसको उन्होंने नोट लिख दिए, ऐसे नोट लिखने छोटे छोटे प्यारे प्यारे। पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है ये करना? पॉसिबल। पाशा समझा क्या? हाँ सर। हाँ चलो आगे जाऊं। मेरे पास टाइम नहीं है तुमको लिखने देने का, तुम लोग आराम से घर पे बैठ के ये मॉड्यूल हमारा आओ सर जल्दी, बिकॉज यहाँ पे बारिश आ गई अभी। बारिश आ गई है हाँ है ना, बारिश आई तो फिर नेटवर्क इशू तो फिर नाचने का अभी बारिश में। नाचो नाचा बस। अभी चालू करो लेक्चर। हाँ सर करो। कर तुम लोग ने बोला करो करके मैं करेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं, वो भी जैसा आंसर सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसा लिखना है मेहनत करके। चलो यहाँ की बात करते हैं। बताओ मेरे पास लास्ट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है ना, लास्ट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, और मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। क्या इन दोनों का सेटअप पॉसिबल है? क्या मैं लास्ट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ
करंट ईयर का शॉर्ट टर्म सेटअप कर पाऊंगा? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? लॉ बताओ, लॉ बताओ। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देख, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या इन दोनों का सेटअप पॉसिबल है? हाँ हाँ, लेकिन मैक्सिमम 75,000 तक ना, तो कितना बच जाएगा? 21 लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना? 20? 21 हाँ, लॉस। मेरी बात सुनो। दूसरी, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप पॉसिबल है? क्या इन दोनों का सेटअप पॉसिबल है? हाँ कितने तक? 37,000 पूरा चला जाएगा ये तो, बरोबर ना? तो बच कितना गया फिर यहाँ पे? टैक्सेबल कितना बच गया? 1,13,000। बरोबर। ये देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो गया 1,13,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 75,000, ब्रॉड फॉरवर्ड जो आइटम था वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 1,13,000 और हमने लॉ लिख दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एकदम सिंपल, देयरफॉर 21,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड। इज इट फाइन? यस सर। Yes. Okay, next. Mr. D has following income for previous year 1920. Okay, income from activity of O&M of race horses. आप समझ रहे हो ना? O&M income है इनके पास, O&M का income है। Very good. Income from textile business, normal business का income भी है। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू 1920, लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। बताओ मुझे, क्या ये 50,000 का लॉस ये 85,000 के सामने सेटअप हो सकता है? लास्ट ईयर का लॉस करंट ईयर के इनकम के सामने पॉसिबल है? नहीं नहीं। नहीं दाऊ में उड़ी मारू। पॉसिबल है, पर पहला करंट ईयर का लॉस करंट ईयर का पहले करना पड़ेगा ना। करंट ईयर का करना पड़ेगा। हाँ, करंट ईयर का लॉस है किधर? लेकिन तुमको दिख रहा है किधर क्वेश्चन में? करंट नहीं है, नहीं नहीं है। करना पड़ेगा अभी। नहीं है क्या? तुम लोग अलग से बना क्यों रहे हो? यहाँ पे है क्या तुम्हारे सामने? नो नहीं। वेरी गुड। ये लास्ट ईयर का मतलब 17-18 का O&M लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 4 years। 17-18 का लॉस है, तो 18-19, 19-20, 20-21, आप समझ रहे हो ना? तो 20-21 तो थर्ड ईयर ही हो गया। तो क्या ये 96,000 का लॉस, क्या ये, पहले बात सुनो मेरी अच्छे से, हाँ, 96,000 का लॉस टेक्सटाइल के सामने सेट ऑफ हो सकता है? नो क्यों नहीं? O&M उसके साथ ही वो सेटअप होगा। उसके साथ में होगा। तो ये, अगर ये पहला आइटम नहीं होता तो इसके साथ तो बिल्कुल होता ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये 96,000 इस 75,000 के सामने सेटअप होगा क्या? हाँ होगा। 75,000 तक ही जाएगा। बच कितना जाएगा? बैलेंस कितना? कैरी 21 O&M कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 21, बरोबर? हाँ हाँ, और ये दोनों सेटअप हो जाएंगे, ये दोनों का भी सेटअप हो जाएगा ना? यस यस। तो टैक्सेबल इनकम कितना? 35। 35। ये देखो कैसे आंसर लिखना है। 75 के सामने 91 का सेटअप किया, 21 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, AY 21 के लिए चले जाएगा। और टेक्सटाइल बिजनेस 85 का था, 50 माइनस हो गया, टैक्सेबल 35। और यहाँ पे उन्होंने लोग, तो सर ये 21 इधर क्यों नहीं हुआ सेट ऑफ? क्योंकि नोट लिखा O&M का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम और एड, बरोबर? बरोबर। यस। आगे ई का इनकम है, ठीक है, क्या क्या है? सैलरी है 1,50,000, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है 60,000, नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस है। क्या ये नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस स्पेक्युलेटिव के सामने सेटअप होता है? नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब नॉर्मल यस होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। यस। हाँ, ये होता है। देखो अभी तुमको कैसे भगवान अक्कल दे रहा है धीरे धीरे। स्पेक्युलेटिव का नॉन स्पेक्युलेटिव के सामने नहीं जाता, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव के सामने चला जाता है। तो ये 40 यहाँ पे जाके ये बच गया कितना? 20। ओके, आगे चलता हूँ।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30 का। ओ माय गॉड, क्या ये दोनों का सेट ऑफ होगा? नहीं होगा। No. टर्म कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। हाँ बरोबर, ये 30 का सैलरी के सामने सेट ऑफ होगा? No. नो ये 30 का चलो, ये 30 का बिजनेस के सामने सेट ऑफ होगा? नहीं। ये 30 का लॉटरी के सामने सेट ऑफ होगा? नो। नहीं। क्योंकि ये 30 जो है ना, ये खुद के सामने ही सेट ऑफ होता है। तो इस साल कैरी फॉरवर्ड कितना करूंगा मैं? कैरी फॉरवर्ड कितना? बोलो शेमलेस बच्चों। 30,000 30,000 कैरी फॉरवर्ड होगा इस साल से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बरोबर। ये समझा? हाँ बराबर। हाँ। तो ऐसे आप लोगों को चैप्टर लिखना है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जहां पे डाउट होगा यू नीड टू आस्क मी द डाउट, आई विल टेक ओनली दैट क्वेश्चन व्हिच इज हैविंग सम कंसर्न। बाकी टाइम पास मुझे करने नहीं है। सेम चीज अगेन एंड अगेन होगी, हायर लेवल पे होगी। दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू बट डू नॉट गेट कंफ्यूज। कैन आई स्टार्ट न्यू चैप्टर आफ्टर 10-15 मिनट्स? व्हाट्स द टाइम नाउ? मेरे 12:20 12:20 अभी चालू करो। आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एट 12:40। तब तक तुमको सेट ऑफ अगर लिखना है लिख लो 20 मिनट में। आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एट 12:40। इज इट फाइन? 12:45 12:45 ओके 12:45 आई स्टार्ट 45 का बैठे 12:45 सी यू गाइस एट 12:45। तो बाकी तुम्हारे मैटर सॉल्व कर। चलो बाय बाय।